Okay, so your x of omega equal to, this is d by d omega. This is 4 sine 4 omega sine omega by 4 by omega. Got it? Right. So this is your d by d omega. Okay. Now you can write here d by d omega. This is sine 4 omega. You can write this is sine omega by 4 upon omega by 4. Okay. Got it? So d by d omega sine 4 omega sine omega by 4 into omega by 4. Got it? This is your x of omega. Okay. Now this omega by 4 into omega by 4. So this can be right here. This is your nothing but a tau sampling omega by 4. So this is called a sampling omega by 4. Okay. So this can be right here, sampling omega by 4. Got it? Hello. Sampling omega by 4. उस रूम में जाओ. सैम्पलिंग ओमेगा बाई 4. अब ध्यान से देखो इधर, इसको क्या लिखोगे आप? sin 4 omega equal to, you can write e raised to power j4 omega plus, sorry, minus e raised to power minus j4 omega divided by 2j. You can write here. Okay. So let's say this is nothing but your any function. This is y of omega. Y of omega. Okay. So x of omega is d upon d omega into y of omega. So what's the y of t? So you can write here, this is minus jt into x of t equal to what? dx of j omega upon d omega. This is the differentiation property, as you know that. So this is your x of omega equal to d by d omega, and this is your property. Okay, this is your property d something. So you can write here minus jt into y of omega. Let's say this is y of omega, so this is y of t. Let's say this is y of t. Y of t equal to d y of omega upon d omega. Got it? So minus jt into y of t equal to what? X of omega, equal to x of omega, and this is nothing but your x of t. Its Fourier transform is what? X of t. Got it? Because these all functions considered as a y of omega. Got it? Is it clear? Is it clear? If not clear, then फिर से मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा. Okay. So this is your minus jt into, basically this is, let's say, y of omega. So x of omega is what? Basically minus jt into y of t is equal to dx of t. This is the formula. Okay. Minus jt into x of t dx of j omega upon d omega. Got it? Okay. So what is the x of t? What's the x of t? But here, because of this is your x of omega. Okay. So minus jt into x of t. So minus jt into y of t, you can write dy of j omega upon j omega d omega, and this is equal to what? X of omega. So x of t can be write minus jt into y of t. Got it? आवाज आ रहा है? Is it clear? Okay. So x of t is minus jt. Audible? Is it clear this concept? Again I'm writing. Okay. Again I'm explaining. Don't worry. Again I'm explaining here in a very clear way. Let's say the total is, let's say this total is y of omega. Okay. So x of omega is what? d by d omega into y of omega. So x of omega is d by d omega into y of omega. You can write. So minus jt into x of t, having the y of t, having the Fourier transform is what? dy of j omega upon d omega. This is the Fourier transform. Okay.
and x of omega having the inverse Fourier transform is x of t. And what's this Fourier transform? Minus jt into y of t. Okay, got it? So first of all, find the y of t and just multiply with the minus jt, and this will be your x of t. Got it? The concept? Please write each and everyone. Clear or not? So this is your concept basically. Got it? Got it, my dear friends? Is it clear? So my okay. तो मेरा m क्या है? बेसिकली m क्या है आपका? y ऑफ ओमेगा. ये जो y ऑफ ओमेगा है इसका y ऑफ t निकालना. इसका sin 4 ओमेगा sin ओमेगा by 4 एंड दिस 4 को लिख सकते हैं डिवाइड करके ओमेगा by 4. ओके, सो अब इसका मुझे निकालना है. सो इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. नाउ y ऑफ ओमेगा इज व्हाट? sin 4 ओमेगा sin ओमेगा by 4 upon omega by 4. Okay, so you can write here sin 4 omega. This is sampling omega by 4. Got it? So a tau sampling omega by tau, omega tau by 2. This is inverse Fourier transform is what? Rectangular function, amplitude a minus tau by 2 to tau by 2. Got it? So just relate this sampling omega by 4. So this is 1 into sampling omega by 4. So this can be right here, omega tau by 2 equal to omega by 4. Cancel out. So tau equal to 1 by 2. So tau equal to 1 by 2. So what's the rectangular functions? So this rectangular function is minus 1 by 4 to 1 by 4. Amplitude is a. And what's the value? A tau. A tau value is equal to what? 1. So what is the tau? Tau is half. So a is equal to what? 2. So this is equal to 2. So this is your rectangular value, and this is rectangular functions minus 1 by 4 to 1 by 4. Amplitude is t, and this can be right 2 racked t by tau. Tau is what? Half. So this is t racked 2t. So 2 racked 2t, and this is your rectangular functions, inverse Fourier transform. Got it? This is inverse Fourier transform, 2 racked 2t. Got it, my dear friends? Is it clear? ये तो बवाल फंक्शन है. Is it clear? So this is t racked tau by 2, and what is the tau? This is half t by tau. Basically it is this a racked t by tau, and just put up here, this becomes 2 racked 2t. Okay, so sampling omega by 4 having the inverse Fourier transform is 2 racked 2t. Got it? Please write. Please write each and every one. Clear or not? Clear? Now sin omega by 4. What you can write sin omega 4? E raised to power j 4 omega minus e raised to power minus j 4 omega divided by 2j. Okay, so sin omega by 4, omega into sampling omega by 4, this can be right here 1 upon 2j. Okay, e raised to power j 4 omega minus e raised to power minus j 4 omega, and this is racked 2 racked 2t. 2 racked 2t. So just 2 से 2 cancel out. This is 1 by j, and just shifting. So this is shifting in what? If you want the in the inverse Fourier transform, so what you can shift here? E raised to power j 4 omega. This is plus. So this is also plus. So you can write racked 2 t plus 2. Okay, this is t plus 2 or t plus 4. When you comment, the shifting is what? 4. So this is your t plus 4. Got it? Minus racked 2 t minus 4. Got it? This is your
Fourier transform of inverse Fourier transform of sine 4 omega into sampling omega by 4. And this is your y of t. What is, my dear friends? This is y of t. So what's basically this is racked 2t. So it will be shifted at +4 or at a -4. So at shifted at -4. So this becomes, you can write the one functions. This is -4. This is -1/4. So this is -1/4 -4. This is +1/4. Actually, this is your 1/4 -4. Okay, got it? And this will what in the negative sense? This is negative amplitude. So 1/j. So you can write it at t equal to 4. This is functions. This is at t equal to 4. And this becomes your what? 1/4 plus 4. This is 1 minus 1/4 plus 4. Got it? Got it? So amplitude is what? This is 1/j. And this is -1/j. Got it, my dear friends? So this is your y of t. This is your y of t. Now we have to find what? We have to find x of t. So just write in this equation. In this equation is what? X of t is minus jt into y of t. So just write in this equation. So you can write x of t equal to minus jt into y of t, and this is minus j into t 1/j. And what is the value? And this is racked off 2t plus 4 minus racked off 2t minus 4. Got it? J to j cancel out. So this can be right here, racked off 2t minus 4 minus racked off 2t plus 4 and multiply with the t. This is your x of t. So basically this is the question of IES mains. Okay, not asked in your in your GATE exam. Okay, this is the question of IES mains. Got it? देख लिया वो मेंस में क्वेश्चन कैसे इतने अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं. क्लियर हुए? अब सेकंड पार्ट तो इजी बना लोगे, खाली प्रॉपर्टी बेस्ड है. सेकंड पार्ट खाली प्रॉपर्टी लगाना है. सेकंड पार्ट वाले में बन जाएगा. बोल दादा, सबको क्लियर है? इसलिए आप लोग का हर लेवल टच कर दे रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे. टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. साला जो एग्जाम में बैठो सब फोड़ डालो. नॉट ओनली गेट स्पेसिफिक. तो सोचो कितना क्लास हो गया, 10-12 क्लास हो गया, ऊपर हो गया 10-12 क्लास से, है ना. तो पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ना है. पढ़ते रहेंगे हम लोग जब तक सिग्नल सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं. बस. क्लियर ब्रो? इज इट क्लियर? एंड स्ट्रिक्टली वन थिंग्स, चलो क्लियर सबको? बढ़िया तरीके से, मजे से क्लियर है? दिस इज योर एक्स ऑफ टी वैल्यू. ध्यान में रखें, ये आपका एक्स ऑफ टी हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो तो बना लोगे सब, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. उसको बताऊं या बन जाएगा? यस, ग्राफ नथिंग मच. racked of 2t is what? Racked of 2t is what? This is -2 -1/4 to 1/4. This is 2. Okay, so 2 racked 2t. This is 2 racked 2t. This is 2 racked 2t. So just multiply here 2 racked 2t 1/2j. This is nothing but shifting. This provides you shifting. So just shift here. So 2 racked t plus 4. What is the Fourier transform of this? This Fourier transform is sampling omega by 4 into e raised to power j omega. Okay. So when this multiply with the sine 4 omega, what becomes? 1/2j e raised to power j 4 omega minus e raised to power minus j 4 omega into sampling omega by 4. So this is the formula. Okay. Got it? So 2 cancel out. So this becomes 1/j. Got it?
Is it clear? Now just direct 2 by 2t amplitude becomes what 1 by j and it shifted at t equal to -4. So -4 पे शिफ्ट करेगा तो -4 पे पूरे शिफ्ट कर दीजिए, तो सब में -4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब में -4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेना, -15/16 और ये हो गया -17/4। ठीक है, एंड एक जल जाएगा t इक्वल टू 4 पे, तो t इक्वल टू 4 पे सब में +4 कर दिए, सब में +4 कर दिए। एम्पलीट्यूड अब क्या है -j, तो ये उल्टा हो गया -j। गॉट इट विवेक? गॉट इट? क्लियर? ओके मजा आया? अच्छा क्वेश्चन था ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x1t का बताइए, x2t का बताइए। तो बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं x1t x2t। अब क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी लगा देना है। क्या है? वाह, हमको लगा कुछ बना के ला रही थी। धोखा है। चलो ठीक, ठीक है, चलो प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ, और क्वेश्चन विधि करवाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सही है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही। रुको तो, अब देखो इसका 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 निकाल लोगे ना। इसमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है। इसमें भी प्रॉपर्टी, इसको क्या लिखोगे, x(3t-2)। ठीक है, खाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखोगे, j ओमेगा का स्क्वायर इंटू x ऑफ j ओमेगा e⁻ -j ओमेगा। x ऑफ j ओमेगा निकाल चुके हो, उसको रख देना। इसको क्या कर दोगे, 1/3 x ऑफ j ओमेगा बाई 3 e⁻j2 ओमेगा। बोलिए क्लियर? इसमें कर देना आप, बोलो बन जाएगा? बना लोगे ना, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है सर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। कर द इंपल्स रिस्पांस ऑफ ए कंटीन्यूअस एलटीआई सिस्टम एच ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है आपको, राइट? एच ऑफ टी आपको सर गिवन है, ये एच ऑफ टी दिया हुआ है आपको। कर रहा है द सिस्टम इज, देखो तो यू ऑफ टी है, मतलब ओनली पॉजिटिव है, मतलब क्या है, काउजल। सिस्टम काउजल तो होगा, ये तो स्टेबल है क्योंकि डिकेइंग फंक्शन है, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये क्या देगा, अनस्टेबल। So causal but not stable. B option. This is bounded, but this is unbounded. So causal but not stable. Got it? अगर यहाँ नेगेटिव होता, क्लियर है क्या? यस सर। पानी वाला गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा। ये e⁻40 u of t -2, देखो अगेन काउजल पॉजिटिव है, मतलब काउजल एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, मतलब काउजल एंड स्टेबल। स्टेबल। So causal and stable. चलिए करें, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम डिस्क्राइब एट लीनियर नॉन लीनियर। देखो एक्स स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है, एक्स स्क्वायर एन, काउजल नॉन काउजल के लिए चेक करना है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर एन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने अगर n का वैल्यू 1 रखा तो x ऑफ 1 वैल्यू ही लिया,
लेकिन अगर आपने ना, ठीक है, ये कॉजल, ये क्या होगा आपका, लीनियर एंड कॉजल, नॉन लीनियर एंड कॉजल बी। अगर ये एक्स ऑफ एन स्क्वायर होता तो ये नॉन कॉजल बन जाता, क्यों, फ्यूचर वैल्यू लेने लगता, क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 यस लिया सर। तो 1 लिया, लेकिन एक्स एन का वैल्यू अगर 2 ले लोगे तो 4 लेने शुरू कर देगा। समझ आ रहा है ना? एक्स ऑफ एन स्क्वायर होता तो नॉन कॉजल हो जाता, एक्स स्क्वायर एन मतलब कॉजल, तो दिस इज कॉजल एंड नॉन लीनियर। गॉट इट विधि? अजय, बच्चा, मोनिका, पार्थ, क्लियर, रोहित, सितू? बेटा सितू, आपको मैंने बोला था कि पर्सनली आप कांटेक्ट कीजिए, आपने कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है? हिदायत दे रहा हूं आज। ठीक है सर, चलो। मेरा मूड जब तक अच्छा है तब तक मैं बहुत अच्छा हूँ, मूड खराब तो खराब, ध्यान रखना, समझा? मैं बहुत पैसेंस वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरे पैसेंस का गलत फायदा मत उठाना कभी। एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या है, रैक्ट टी माइनस हाफ, ठीक है दोस्त? रैक्ट टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कह रहा है, सिंक ऑफ एक्स कह रहा है साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स कह रहा था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी का बात बताओ क्या होगा? कुछ नहीं, एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म देखो, रैक्ट टी माइनस 1/2 है ना, तो देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, रैक्ट 2t माइनस 1/2, मतलब t बाई टॉ अगर हम बात करें, t बाई टॉ, इसको क्या लिख सकते हो तुम, रैक्ट t माइनस 1/2, हाफ, हाफ से शिफ्ट की है, तो टॉ का वैल्यू कितना 1 है, मतलब ये हो गया टॉ बाई 2, सो दिस इज माइनस हाफ टू हाफ, ए टॉ, ए टॉ का वैल्यू कितना 1, सो दिस इज 1, हाफ से शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हाफ से शिफ्ट करोगे 0 और 1 1, ये क्या बन जाएगा सर आपका, रैक्ट ऑफ t माइनस 1/2, बोलो क्लियर है? एक्स ऑफ टी क्लियर बुआ? अजय, विधि, दक्षा, गौरव, मानिक, मोनिका, पार्थ, रोहित, सितू, बोलो बेटा, विवेक, क्लियर है सबको? बराबर, विवेक एकदम क्लियर है? यस सर। अब कह रहा है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताइए, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका बताइए, ठीक है? तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बुआ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर ये होता तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता, ए टॉ सैम्पलिंग ओमेगा टॉ बाई 2, है कि नहीं? एंड टॉ बाई 2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू टॉ एम्पलीट्यूड 1 इंटू टॉ इज 1, सो 1 इंटू सैम्पलिंग ओमेगा, ये हो गया इसका 1 इंटू सैम्पलिंग ओमेगा, ठीक है? तो दिस इज 1 अपॉन सैम्पलिंग ओमेगा। नाउ सिंक ऑफ एक्स का रहा है, ये क्या है, सिंक ऑफ एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, दिस इज इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ पाई एक्स बोला जाता है इसको, सिंक ऑफ एक्स इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ पाई एक्स। रेक्ट ऑफ t माइनस 1/2, इसको क्या लिखोगे आप, सैम्पलिंग ओमेगा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा बाई 2, ठीक है? ये हो गया आपका x ऑफ j ओमेगा। अब कह रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका बताइए, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताइए, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, x ऑफ j ओमेगा प्लस x ऑफ माइनस j ओमेगा, just put here this is sampling of omega e raised to power minus j omega by 2 plus sampling of omega e raised to power j omega by 2। अब 2 से डिवाइड करो तो 2 इंटू सैम्पलिंग ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो e raised to power j omega by 2 प्लस e raised to power minus j omega by 2 upon 2 and this is 2 sampling omega into what, cos omega by 2, ओके? सो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन होगा नहीं, जो होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है? अरे क्लियर, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सिंक सैम्पलिंग को लिख सकते हो सिंक के फॉर्म में भी, है ना, तो वो सिंक के फॉर्म में ही लिखा है ना, ओमेगा बाय 2 पाई ले लिया, क्लियर? कुछ नहीं किए, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिए, एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ j ओमेगा हुआ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दिए, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ j ओमेगा प्लस एक्स ऑफ माइनस j ओमेगा, जस्ट पुट करके उसको रीअरेंज कर दिए मानिक,
गॉट इट। बस पुट करके और रीअरेंज कर दिया मानिक। एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या, सैम्पलिंग ओमेगा e raised to power माइनस जे ओमेगा बाई 2, e raised to power माइनस जे ओमेगा बाई 2 प्लस सैम्पलिंग ओमेगा e raised to power जे ओमेगा बाई 2। सैम्पलिंग ओमेगा कॉमन ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, cos ऑफ ओमेगा बाई 2। और ऑप्शन में देखो cos ऑफ ओमेगा बाई 2 एक ही के साथ है, c के साथ, मारो सी निकलते रहो। क्लियर मानिक, अब मजा आया। चलिए बना लिए थे, ये क्वेश्चन बन गया था, सिंपल है। उसको क्या लिखोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/5 एक्स ऑफ जे ओमेगा बाई 5 e raised to power माइनस जे ओमेगा 3/5, है ना, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना था, ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना था। चलो मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे, -2 to 0, -2 to 0 क्या, e raised to power t, e raised to power माइनस जे ओमेगा t इंटू dt, बस इंटीग्रेट कर देना है, एंड 0 to e raised to power माइनस t, e raised to power माइनस जे ओमेगा t इंटू dt, जस्ट इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, देखो e raised to power t, e raised to power माइनस जे ओमेगा t, ये बन जाएगा 1/1 माइनस जे ओमेगा e raised to power 1 माइनस जे ओमेगा इंटू t, एंड दिस इज -2 to 0 प्लस ये बन जाएगा 1/1 प्लस जे ओमेगा e raised to power t इंटू 1 प्लस जे ओमेगा, t इंटू 1 प्लस जे ओमेगा, और ये बन जाएगा कहाँ 0 to 2, ऊपर कर दिया मैंने, है ना, माइनस माइनस खत्म कर दिया, ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस नीचे आएगा, माइनस खत्म कर दिया, ऊपर 0 नीचे 2, क्या बन जाएगा 1/1 माइनस जे ओमेगा, ये बन जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 माइनस e raised to power -2 इंटू e raised to power माइनस बिकम्स जे ओमेगा 2, ठीक है, बस पुट कर दिए, एंड दिस पर 1/1 प्लस जे ओमेगा, बस खाली पुट करना है सर, दिस इज 1 माइनस e raised to power -2 इंटू e raised to power -2 जे ओमेगा, गॉट इट। चलिए 1/1 प्लस जे ओमेगा अगर कॉमन लेंगे, ये और ये एक साथ रखिए, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब एक साथ रखोगे तो क्या बनेगा, इसको और इसको एक साथ रखो, क्या बन जाएगा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो इसको और इसको ऐड करो, ये बन जाएगा 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, e raised to power -2 यहाँ पर भी, e raised to power -2 पे यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो, e raised to power -2, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/1 माइनस जे ओमेगा e raised to power जे ओमेगा 2 जे ओमेगा, ठीक है, माइनस हो गया, एंड प्लस 1/1 प्लस जे ओमेगा, ये बन जाएगा e raised to power -j2 ओमेगा, गॉट इट। अब इसको लिखोगे तुम 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस e raised to power -2 कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, गॉट इट। अब क्या करना है, इसको अरेंज कीजिए, ये बन जाएगा जे ओमेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा e raised to power जे ओमेगा 2 प्लस e raised to power माइनस जे ओमेगा 2, ठीक है, प्लस जे ओमेगा e raised to power जे ओमेगा 2 माइनस e raised to power माइनस जे ओमेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, इसको 2j से डिवाइड कर दो, 2j से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन है सिर्फ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस e raised to power -2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 cos 2 ओमेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2j ओमेगा
2j यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, j ओमेगा ऊपर से था तो j ओमेगा ऊपर में ही किया तो 2j j स्क्वायर दिस इज -2, ये बन जाएगा तुम्हारा -2, खाली कैलकुलेशन है दोस्तों, रीअरेंज करना है, -2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा। ठीक है, अब माइनस ले जाओगे अंदर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 e raised to power cos omega plus 2 omega, this option C is the right option. Got it? Okay, got it? मजा आ गया? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बना लिया होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, सिंपल क्वेश्चन एकदम, है ना, बन गया था, कुछ नहीं करना है। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, सैम्पलिंग बनेगा इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ए टॉ सैम्पलिंग ओमेगा टॉ बाई 2, सो टॉ बाई 2 इक्वल टू 2, सो टॉ इक्वल टू कितना 4, है ना, ये क्या बनेगा, ए टॉ का वैल्यू, ए टॉ इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ए इंटू टॉ का वैल्यू कितना है 4, सो दिस इज ए इक्वल टू 1/4, सो एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हो 1/4 sampling omega tau by 2 and omega tau by 2 equal to 2, so this is 2 omega. Okay, so a4 sampling 2 omega, but this is x of j omega, so 1/4 sampling inverse Fourier transform is 2t, so 1/4 sampling 2t. Got it? Now for positive, this is the phase is what, this is your phase is positive phase, and this is nothing but your decaying phase, -2 to 2, this is decaying phase. Okay, and decaying phase is what, एक्स ऑफ जोमेगा, इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, तो ये एक्स ऑफ जोमेगा की वैल्यू कितनी है, ये एक्स ऑफ जोमेगा की वैल्यू आ गई आपकी, बताइए इसका, ये बन जाएगा आपका 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज योर -2, मतलब e रेज़ टू पावर -2 j ओमेगा के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्यों, क्योंकि 2 से आपका डिवाइड हो रहा है, 2 ओमेगा -2 ओमेगा है आपका, ये स्लोप निकालिए ना, दिस इज -2 ओमेगा स्लोप, सो स्लोप इज -2 ओमेगा, so basically this is your 1/4, are you getting my point, this is x of j omega, so x of t, तो 1/4 x of t क्या होता है आपका, है ना, इसलिए सैम्पलिंग, सो इसको क्या लिखेंगे 1/4 इंटू साइन 2 पाई टी, सॉरी साइन 2t, इसको सैम्पलिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या लिखोगे आप 1/4 साइन 2t डिवाइडेड बाई 2t, ओके, इंटू क्या, e raised to power -j2 ओमेगा, तो e raised to power -j2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब यहाँ शिफ्टिंग क्या होगा 1/4 sin 2t minus 2 upon 2 into t minus 2, got it, upon t into 2 minus 2, got it my dear friends, is it clear? ओ भैया क्लियर है, इसके फॉर्म में आएगा। अब पाई का फैक्टर कहाँ से आ रहा है, देखो ध्यान से, पाई का फैक्टर कहाँ से आएगा, बेसिकली दिस इज ओमेगा बाई 2, तो ओमेगा बाई 2 इक्वल टू 2 है, सो ओमेगा का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर जो है x ऑफ t क्या लेते हैं आप, इनवर्स 1/2 पाई -2 to 2, ऐसे भी लिख सकते हो -2 to 2, डायरेक्ट x ऑफ t इक्वल टू 1/2 पाई -2 to 2, दिस इज 1 into e raised to power -j ओमेगा into t ओमेगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इंटीग्रेट, ओके, जब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे, दिस इज द इंटीग्रेशन